Welcome back. You're watching India Today, and we have been reporting on the big announcement by the Prime Minister on the repeal of the 3 contentious farm laws that have been decided by his announcement today. But what are these 3 contention laws, and what was the flashpoint between the centre as well as the farmers who have been camping on the borders? My colleague Poulomi Saha will explain. Poulomi, to you now. Right, Milan, what were these 3 contentious farm laws? In fact, it was the Farmers Produce Trade and Commerce Act, Essential Commodities Amendment Act, that was the second one, and the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. 5 reasons, in fact, the farm laws which were repealed: unyielding farmer protests. This is one of the reasons. It has been going on for the past 15 months. The second reason being the upcoming polls in Punjab and Uttar Pradesh, both states poll earlier in 2022, revoking the laws now being seen as politically prudent. That is what, of course, the government believes that it was the politically prudent thing to do, disarm the opposition on the threshold of elections. So how is the opposition now going to counter this, given that this was a big poll plank for the opposition? And one of the other reasons, of course, it is an opportunity for man of the soil message by the Prime Minister. Again, a message that the opposition will have to counter in the upcoming elections. Back to you, Milan. Okay. Well, thank you for that, Poulomi. In fact, we have been reporting from the ground at various border points. I'm at Tikri border right now, and I have with me farmer union leaders who have been protesting, and we'll speak with them. Sir, बताइए, आज प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया है फार्म लॉज के रिपील के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और ये भी कहा जा रहा है कि एमएसपी पर अभी भी बातचीत आप लोग देख रहे हैं, तो एमएसपी की गारंटी अभी भी आपको लिखित में चाहिए? बिल्कुल। आज सभी देशवासियों को और आपको गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की बधाइयाँ हो। और उसके बाद आज 1 साल बाद आंदोलन लड़ने के बाद प्रधानमंत्री आज कुछ बोला है इस गुरु नानक देव जी जन्म दिहाड़े में। उन्हें बोला है भी जो किसान कानून रद्द कराने के लिए लड़ रहे हैं वो हमने रद्द कर दिए। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में जो हमें आस लेके आई सी, घर बार छोड़ के आई सी, आने वाली फसलों की और नस्लों को बचाने के लिए जो आज़ादी तो पहली बार इतना लंबा संघर्ष, जो हमारा चुनी हुई सरकार जो हमें फ़ायदा देना चाहती थी, लोगों के लिए कानून बनाना चाहती थी, लोगों के हक़ के कानून बनाना चाहिए थी, तो पहली बार ये प्रधानमंत्री ने लोगों के ख़िलाफ़ कानून बनाए थी। इसलिए हमें कारोबार छोड़कर इधर आए और 1 साल 26 नवंबर को हमारा होने जा रहा सी। आज प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी राहत की खबर दी है, पर अब जब तक इसको पार्लियामेंट में और राज्यसभा में रद्द नहीं किया जाता, उदों तक असी बिल्कुल इथों ना तो वापस जाएंगे और नाल दी नाल ही जिहड़ा साडा देश इस किसानी दे निर्भर है, 70% किसानी ते निर्भर है। और पंजाब हरियाणा को सिर्फ छोड़कर जो सिर्फ 2 फसलें की एमएसपी मिलती है, पूरे का पूरा हिंदुस्तान वो पूरी गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है। और हम तो पूरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए इधर आए हैं, और इसके बाद इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे जब तक ये तो उदों ही वापस जावांगे जदों पूरे देश में एमएसपी गारंटी होगी। और जितने भी हमारे इधर मुकदमे हुए या आंदोलन के लड़ने में हमारे जो किसान शहीद हुए हैं, उनको पूरी तरह इंसाफ असी नहीं दिवा सकेंगे, तो हम इधर पूरे इसी तरह डटे रहेंगे। Definitely, and the demand for MSP as well as farmer unions here saying that they are not going to leave from any border point till the proceedings begin in Parliament to repeal the law. But India Today has exclusively spoken to Rakesh Tikait on the Prime Minister's announcement today. Let's listen in. सर, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जो कृषि कानून है उसे वापस लेने का ऐलान किया है, इस बारे में आप क्या कहें? देखो, उन्होंने वापसी लेने की बात कही है। वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है, और उससे पूरे देश के किसानों को
फ़ायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। ये सारी चीज़ें सरकार बैठ के तय करे। ये नहीं है कि हम चले जाए और 2 महीने बाद ये दूसरे और कुछ चीज़ लेकर आए। उस पर सरकार से एक बातचीत का माहौल बने, एक बातचीत सरकारों से होती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वर्ग जो था इस बिल को नहीं मान रहा था और उन्होंने देश से माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि हम जो है किसानों को समझाने में कुछ ही कम पड़ गए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, किसानों को समझाने में कम कहाँ पड़ गए, समझकर उसका थोड़ा है, फसलें आधी रेट में बिकेगी और व्यापारियों को, जो बड़ा उद्योगपति है, उसको लाभ देने के लिए कानून लेकर आए थे। समझाने का उसका मामला नहीं है, ना समझने का सब पता है उनको कि क्यों लेकर आए थे। देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में, इसका मतलब पार्लियामेंट में भी लीकेज है। तो ये सब ये देश की जनता सब जानती है, कोई जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से ऐलान किया गया है, जो आपके आंदोलन चल रहे हैं, उसको खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, यहाँ का आंदोलन जब खत्म होगा, आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय होंगे कि किस किस चीज़ों पे सरकारों से बातचीत होगी, कौन सी चीज़ें सरकार मान रही है। तो ये आंदोलन तो जब खत्म होगा, जब पूरा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट हो जाएगा, देश का किसान संतुष्ट हो जाएगा और ये कानून वापसी हो जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। ये अभी 4-5 चीज़ें हैं और ये बैठ के ही बातचीत होगी। ऐसा नहीं कि फैसला वन से सुना दिया और किसान ऐसे ही चला जाएगा। ये कैसे होगा? पार्लियामेंट सेशन है, उसमें आएगा, कितने दिन इसमें लगेंगे, क्या क्या और जो मसले हैं उसमें कैसे कैसे बातचीत होगी। Well, that was an exclusive conversation with the farmer union leader Rakesh Tikait. I want to go back to my reporters on the ground at this moment. We have Kumar Kunal joining us from the Ghazipur border. Kumar Kunal, to you, what is the situation like at the border? Rakesh Tikait has also said that right now there are farmers who've been sitting there for a year now and they will not move until and unless the proceedings actually begin in Parliament. What are you speaking to and picking up from your conversations there? Initial celebrations here at Ghazipur border. Routine. Actually, what Tikait has said, the message has gone down to the educating farmers now, and they are very much clear that till the bills are being repealed through the parliamentary proceedings, they are not going to go back anywhere from here. So now the situation is normal. The celebration has taken place. Some crackers have been bursted. Even jalebis have been distributed, although Guru Purab is today also. So it was a special kind of celebration in backdrop of Prime Minister's address. The Ghazipur border, we now move to other border points as well. My colleague Himanshu Mishra joins me from Singhu border. Singhu border became a major flashpoint when farmers wanted to move into Delhi. Himanshu, हमें बताइए कि सिंघू बॉर्डर जहां पर किसानों ने कूच किया था दिल्ली की ओर, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर और क्या कह रहे हैं आपसे वहां के किसान? देखिए, करीबन 1 साल हो गया। 25 नवंबर की ही शाम को यहाँ पर तमाम किसान पहुँचे हुए थे और ये देखिए इसी तरीके से ट्रैक्टर लेकर घर लेकर के यहाँ पर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया था और थे। और आज गुरु पर्व का दिन है। जैसे ही इन्हें सुबह जानकारी मिली कि तीनों कानून रद्द कर दिया गया है, मुझसे खुद बात करते हैं, कब जानकारी मिली और क्या कहना है? हाँ जी, जानकारी ये मिली है सवेरे 9 साढ़े 9 बजे। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते बाबे नानक ने कृपा की है, बहुत वधिया। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश हैं। वापस जाएंगे अब यहाँ से? वापस जाएंगे। वापस जाएंगे यहाँ से। आप बताएं। हाँ जी, आप? हाँ जी, हम खुश हैं। हमारी खुद ही तो बहुत टाइम पहले आ जाती है, हम तो बहुत टाइम पहले जीत जाते। पर ये गोदी मीडिया है ना, जो
वो ही नहीं जीतने दे रहा था। तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं, कई सारे किसान यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कहाँ से आए हैं और कब से आए हुए? कहाँ से आए हैं, कब से आए हुए? हम पंजाब से आए। अच्छा, कब से आए हुए? अमृतसर। अमृतसर। 1 साल हो गया है। आप पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे आप जब वापस हो गया कृषि कानून? वापस अभी देखो 1-2 लग जाएगा, 1 महीना तो लग ही जाएगा। 1 महीना नहीं लगने की बात है, कह रहे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। बोलने से हो सकता है अभी इतना सामान लेके जाएंगे, बाद में कृषि कानून वापस हो जाएगा तो वापस जाएंगे आप? वापस जाएंगे। जोर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान से हम सब सदैव प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने धर्म के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी क्यों कर देना। Coming up, Welcome back. The Prime Minister, of course, announced that the 3 central farm laws will be repealed when the winter session of Parliament commences. Now, there is obviously a lot of conflict in what the Prime Minister said and what the opposition believes pressurized him into taking that decision. The Prime Minister said that the government cannot see the pain of farmers. What the opposition is claiming is this is the direct impact of the protest by farmers and the pressure exerted by them. Prime Minister Modi said we failed to convince farmers. He, of course, expressed pain that he was not able to convince farmers. The opposition says the government was stubborn towards farmers and their suffering. Prime Minister Modi said have bowed to farmer brothers and sisters. The opposition says the government has been conquered by the farmers and their grit. Prime Minister Modi said scrapping of laws on the holy day of Guru Purab. That is the gift that was given by the Prime Minister and the central government. The opposition says the government buckled because of polls and protests. Remember, there are polls in Uttar Pradesh and in Punjab where the opposition believes that the central government and the Bharatiya Janata Party specifically was to feel the impact of the farmers' agitation, as a result of which this decision was taken. My colleague Kumar Kunal is now joining me live from Ghazipur border. Kunal, what are the protesting farmers telling you? They're of course adamant they're not going to call off their protests immediately. They will wait to see what happens in Parliament. It is of course a promise that the Prime Minister has made. But are they also insisting on a written guarantee of MSP as well? What are they telling you at the moment? Kunal, can you hear me? Okay, we'll try and connect with Kumar in a bit. My colleague Himanshu Mishra is also joining me from the Singhu border. हिमांशु, आपके आसपास जो किसान हैं सिंघू बॉर्डर पर, वो आपसे क्या कह रहे हैं? क्योंकि कृषि कानूनों को रद्द करने की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कह दिया है कि जो शीतकाल का सत्र है पार्लियामेंट का, तभी वो रद्द कर दिया जाएगा। पर क्या अब भी किसान अड़े हुए हैं इसी बात पर कि एमएसपी की गारंटी दो लिखित में, तभी हम यहां से निकलेंगे बॉर्डर से? देखिए, यहाँ कई सारे किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज आप लोगों ने क्या प्रधानमंत्री की घोषणा की? बहुत महाराज गुरु नानक का धन्यवाद करने महाराज का, जेडे महाराज के दिन ते आन के मत पाई, अंगी मत पाई। तो आप लोग खुश हैं? बहुत खुश आप लोग खुश हैं? बहुत खुश जी। ये बताइए कि अब आगे क्या करने वाले? क्या आप लोग यहाँ से वापस जाएंगे? वापस भेज जावांगे जिन्ने चर सानू लेके देगा, लिखित रूप देगा। लिखित चाहिए जब तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा कह रहे हैं। तो जल्दी पे कौन? अच्छा, जिस दिन हो जाएगा पार्लियामेंट भेज जावांगे, चले जाएंगे। हाँ जावांगे, चले जाएंगे। तो पॉलिटी आप देखिए, यहाँ पर सभी बुजुर्ग किसान लोग हैं। और आप लोग यहाँ कब से आए हुए हैं?
यहाँ पर कब से आए हुए हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी, पिछले साल क्योंकि 25 नवंबर के दिन आप लोग यहाँ शाम को आए थे, ठीक है, तब से मैं भी यहीं पे आ जा रहा हूँ, हमेशा आप लोगों को कवर किया है। एक साल समय आप लोगों का यहाँ बीता, आपको क्या लग रहा है कि? बहुत बढ़िया लगता, बहुत बढ़िया महसूस नहीं होया, जी नहीं करता अज लंगर खाण नूं। अज गुरु नानक दा महाराज दा दिन वा, ओदे करके महाराज नूं बधाइयां देने आ। तो गुरु पर्व था तो उसकी तैयारी तो कर ही रहे होंगे, ये सोचा था आपने कि ये भी आपको मिल सकता है तोहफा ऐसा? नहीं ऐसा नहीं सोचा, पर हो गया। हम सोचते 1 साल बाद लगेगा, और साल लगेगा, पर महाराज ने बहुत 24 तक सह गल बने, चलो महाराज ने कृपा दी है, की खेती कम बन गया। आप लोगों का ये कहना है कि अगर पार्लियामेंट में जैसा कि कहा गया है आने वाले सत्र में इसे जब वापस ले लिया जाएगा तो आप लोग जाएंगे? फिर जाएंगे। तब तक आप लोग रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप चलेंगे? वो नहीं चल रहना। और जो आप लोगों की बाकी मांगे थी वो बातचीत, वो सारी मंगनियां ने। किसान ਜਿਹੜੇ गाड़ी जथेबंदियां वो जो करनगे फैसला वो ते फुल चढ़ावांगे। आप देखिए यहाँ पे पॉलमी जो तमाम बुजुर्ग किसान लोग हैं जो शुरुआत से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का ये कहना है कि जब लिखित में इन्हें मतलब पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है अब वापस हो गया, सरकार ने कानून को वापस ले लिया ऑफिशियली, तब ये यहाँ से चले जाएंगे। जी हिमांशु, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और उन किसानों से बात करने के लिए जो सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो चुका है। माय कॉलीग श्वेता सिंह also spoke to some protesting farmers. Listen in. तो उत्साह दिख ही रहा है, कितना महसूस किया? बहुत खुशी की बात है, कई महीने तपस्या कई किसानों ने, उस तपस्या का रिजल्ट यह है कि प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने किसानों को खुश कर दिया। बहुत खुशी की बात है, हद से ज्यादा खुशी की बात है। आज पहले प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि किसान अपनी जगह पर सही था और उन्हें किसानों की ये जीत है, ये जीत हमेशा एकता की, सत्य की जीत होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात। आप लोग भी गए थे वहाँ पर, हम लोग भी गए थे, कई बार गए। ये संघर्ष बड़ा बहुत कठिनाइयों का था आप लोग, लेकिन आज जीत से बहुत ज्यादा खुशी मिली है। 13-14 महीने से उधर बैठे थे हम, अब हमारी तपस्या का फल मिला है हमें, तो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की घोषणा अभी तक जितना गुस्सा था वो शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हुआ है। गुस्सा था वो शांत हुआ है, बताइए जी। आप बिल्कुल शांत हुआ है, पहले गुस्सा बहुत था, बहुत ज्यादा। कितना अच्छा मन महसूस हो रहा है, बहुत। अब एक बार वहाँ जाना पड़ता था, एक बार यहाँ आना पड़ता था, और गन्ने का तो यही नहीं पता था कि बिकेगा नहीं बिकेगा, रेट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी सुकून मिल रहा है, लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। ये चुनावी घोषणा न होगा। आप लोग भी गए थे? हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी घोषणा न हो तो? हाँ, उसके बाद फिर दोबारा लगा दी जाए तो वो इसमें अभी हमें पूरा वो नहीं है। So Singhu border to Muzaffarnagar, you can see farmers there welcoming the announcement which has been made by Prime Minister Narendra Modi. We're slipping into a very short break. Stay tuned to India Today News and Updates. We'll continue on the other side.